Hello students, welcome to the destination classes. Today I am going to teach you exercise 2.2 of chapter exercise 2.2 of class 9th mathematics polynomial. So let's start with the question number 1. In the previous class we discussed what is polynomial. Now today what we are going to discuss how to find the value of polynomials at different value of x. For example, find the value of polynomial. This is the given value of polynomial. According to the question, this is the given value of polynomial. और आप देख सकते हो ये सारा का सारा polynomial जो है वो एक ही वेरिएबल में है, वो वेरिएबल है x. तो ये हो गया आपका px 5x minus 4x square plus 3. Now what we need to find, we have to find the value of x is equal to 0. मीन्स इस px की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो जहाँ x था उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया 0. तो हर जैसे ही x को आपने 0 से रिप्लेस किया तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जहाँ भी x होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा 0. तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3. और बच्चों आपने सॉल्व किया, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0. तो ये भी 0 प्लस 3. तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव p0 इज इक्वल टू 3. नाउ px इज इक्वल टू दिस. नाउ अगेन x इज इक्वल टू -1. अब आपने x की जगह -1 रखा. 5 इंटू -1 -5. -1 का स्क्वायर क्या होगा 1. -4 इंटू 1 -4 प्लस 3. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू हैव -6. -5 -4 -9 -9 प्लस 3 -6. अगेन px 5x -4x square plus 3. And we have to find x is equal to 2. Then p2 is equal to 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. And we are going to have this value. So this is the first question of exercise 2.2. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. Now friend, let's start with the exercise 2.2. The question is find p0, p1, p2 and the following polynomials. In the previous question I told you, if the whole polynomial is in x variable, then we named it px. If the whole polynomial is in y variable, then we named it py. But the concept of this question is same as the question number 1. Why I am saying this? Because what we have to do in each and every part, in each and every polynomial, we have to find its value when y is equal to 0, when y is equal to 1 and when y is equal to p2. मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट है. Here friends, what is the value of py? Value of py is y square minus y plus 1. And what we have to find here? We have to find the value of p0. So p0 means we have to put y equal to 0. So wherever the y is in this equation, we have to put that y is equal to 0. So y square means 0 square minus 0 plus 1. 0 minus 0, 0, 0 plus 1 is equal to 1. In a similar way, if we have to find the value of p1, then we can find it like this is the given variable. You can see here y square minus y plus 1. We have to find the value p1. p1 means 1 square minus 1 plus 1. 1 minus 1, 0 plus 1, 1. Now p2, y square. You can see here y square. Y square means 2 square minus 2 plus 1. 2 square 4, 4 minus 2, 2 plus 1, 3. So this is the first part of this equation. Now we will move to the second part. Second part is, as far as second part is concerned, pt is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube. We have to find the value of again p0. So put t is equal to 0, t 0, t square 0 square, t cube. जहाँ भी बच्चों t होगा वहाँ आपने उसकी जगह क्या पुट करना है 0. Whole equation will be 0 because 0 into anything 0. The answer is 2. p1 2 plus 1 plus 2 into 1 square minus 1 cube. 2 plus 1 plus 2 minus 1. 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा. 2 plus 2 क्या हो जाएगा 4. p2
2 plus 2 into 2 square minus 2 cube. 2 plus 2 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 minus 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 means 2 into 2 into 2, that is 8. 2 raised to power 3 means 2 2 2. 2 raised to power 2 means 2 into 2. जितनी पावर होगी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है. 8 will be cancelled out and we have 4. So now pause the video, note down the whole concept and then try part 3 and part 4 and then we will do the cross analysis. आप pause करके इसको try करो, फिर मैं इसको क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, आप चेक करो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है. थैंक यू. नाउ फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. लेट्स सी द आंसर. और जो थर्ड पार्ट है हमारा px is equal to x cube. What we have to find? p0. p0 means 0 cube and 0 cube is equal to 0. Then p1 x cube. तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1 raised to power 3 is equal to 1. Then बच्चों p2 2 raised to power 3 is equal to 8. Right? In a similar way, fourth part क्या है बच्चों? px is equal to x minus 1 x plus 1. First of all, p0 will be equal to 0 minus 1 0 plus 1. 0 minus 1 क्या होगा बच्चों? minus 1 0 plus 1 1. तो 1 into minus 1 friends minus 1. Right? Then p1 will be equal to 1 minus 1. x की जगह 1 रखोगे और 1 plus 1. 1 minus 1 friends 0. 1 plus 1 2. तो बच्चों 0 into 2 कितना होगा? 0. तो p1 भी आ गया. Then p2. अब आपका px कितना था? x minus 1 x plus 1 and we have to find p2. x की जगह क्या आ जाएगा? 2 plus 1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 2 minus 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 1. और 2 plus 1 कितना हो जाएगा? 3 and 3 into 1 3. तो अगर p0 की बात करते हो तो -1, p1 की बात करते हो 0 और p2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3. और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फ्रेंड्स, question number 3 is, now students, question number 3 is verify whether the following polynomials are zeros of polynomial indicated against them. पहला क्वेश्चन को समझो वो क्या कह रहा है. अब हर क्वेश्चन के आगे देखो, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है और ये आपको x की वैल्यू गिवन है. पार्ट 2 में भी देखो, ये आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है और ये इसके आगे x की वैल्यू गिवन है. पार्ट 3 में देखो, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है और ये इसके आगे आपको x की वैल्यू गिवन है. ऐसे पार्ट 4 में ये पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है और ये इसके आगे x की वैल्यू गिवन है. अगेन पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ x, पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ x. इन दिस क्वेश्चन पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ x. अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि हर एक पॉलिनोमियल के साथ जो x की वैल्यू गिवन है, क्या वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर पॉलिनोमियल के साथ जो ये x की वैल्यू गिवन है, क्या ये इसका जीरो है या नहीं है. बहुत सिंपल है चेक करना. आप x की वैल्यू पुट कर दो. जैसे आप x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये x की जो वैल्यू थी वो इसका जीरो थी, यानी कि इट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और अगर इस x की वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो ये जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल की जीरो वैल्यू नहीं है. मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. फर्स्ट पार्ट में अगर आप आते हो तो आपको px गिवन है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px? 3x plus 1. What is the value of px? 3x plus 1. और मुझे चेक किस पे करना है, when x is equal to -1/3. तो आप लिखोगे put x is equal to -1/3. और जैसे बच्चा पुट करोगे तो p of -1/3 की आपकी वैल्यू आ जाएगी. वो क्या हो जाएगी? 3 into
-1/3 +1, 3 से आपका 3 कट जाएगा और -1 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये 0 आ गया है, आप देख सकते हो कि ये क्या आ रहा है आपका 0, तो आप लिखोगे बच्चों यहाँ पे बिकॉज x इज इक्वल टू बिकॉज p ऑफ -1/3, क्योंकि यहाँ पे आपने इसी को पुट किया था, राइट। बिकॉज p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ 0 ऑफ px। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में बच्चों आप देख सकते हो px की वैल्यू क्या है, 5x - 5, px इज इक्वल टू 5x - 5, और x के जिस वैल्यू पे मुझे चेक करना है वो x की वैल्यू कितनी है 4/5। तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 4/5, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 4/5। तो 5 × 4/5 - पाई, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 - पाई विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि इस वैल्यू को पुट करके ये 0 नहीं आया है, देयरफॉर p ऑफ, आप लिखोगे पहले बिकॉज p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x is equal to 4/5, x is equal to 4/5 is not 0 of px। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। px आपको गिवन है बच्चों x² - 1। अब यहाँ पे आप देखो x की दो वैल्यू है, एक और 1 है और एक और -1 है। तो एट फर्स्ट हम 1 पे चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1² - 1 विच इज 0 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px। सेकेंड पार्ट भी हम यही कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है बच्चों -1, पुट x इज इक्वल टू -1, p ऑफ -1 विच इज -1² - 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अगेन बच्चों ये भी 0 आ गया, बिकॉज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px। अब मैंने आपको 3 पार्ट्स ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप पहले वीडियो पॉज करो, 4th पार्ट को ट्राई करो, उसके बाद फिर आपने क्रॉस एनालिसिस चेक करना है। मैं कर रहा हूँ 4th पार्ट, पर आपने वीडियो पॉज करके आगे का देखना है, ठीक है। नाउ 4th पार्ट, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। px है बच्चों आपका x + 1 x - 2। px क्या है आपका x + 1 और x - 2। तो पुट x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों p ऑफ -1 कितना आ जाएगा आपका -1 + 1 -1 -2, -1 + 1 0 और ये -3। आप लोगों को पता है 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट 0 ऑफ px। इसी तरह से बच्चों हम ट्राई करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। तो आप निकालोगे p2 के केस में हो जाएगा आपका 2 + 1 और 2 - 2। यू कैन क्लियरली सी 2 + 1 3 और 2 - 2 बच्चों कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ px। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, जो भी px की वैल्यू गिवन है उसमें जो x की इंडिकेटेड वैल्यू गिवन है उसको उसमें पुट करना है। अगर वो वैल्यू पुट करके px 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है इसका 0 है, और नहीं आएगा तो इट इज नॉट अ 0 ऑफ px। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द 5th and 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू। So bachcha, now let's do the remaining part of question number 3. The indicating value here is x equal to 0,
The indicating value in this part is x equal to -1/l, and the same here. Here two values are indicating. हम ऑलरेडी 4 पार्ट कर चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 5। फिफ्थ पार्ट में फ्रेंड्स px आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। px जो है आपका x² है और मुझे वैल्यू चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं px आपका x² है और x इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। तो फर्स्ट हमें निकालना है एट x इक्वल टू 0 p0 करके मेरा ये 0 आ गया, क्योंकि ये 0 आ गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ px। नाउ पार्ट 6, मेरा px कितना है lx प्लस m। मेरा px कितना है lx प्लस m। तो बच्चों मैंने px लिखा lx प्लस m और x की वैल्यू कितनी है -m/l। तो एट x इज इक्वल टू -m/l, p ऑफ -m/l विल बी इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। l विल बी कैंसिल आउट, -m प्लस m विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 आ गया देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l इज अ 0 ऑफ px, right? Now part 7, you can see here px is equal to 3x square minus 1. In part 7 px is equal to 3x square minus 1 and we have two values here. So one by one, first value is x is equal to -1 by root 3. So when we solve this value, p of -1 by root 3 is equal to 3 into -1 by root 3 square minus 1, 3 into, बच्चों किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर होगा 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा आपका 0, 1 by 1 कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू 2 by root 3, x इज इक्वल टू 2 by root 3। So p by 2 by root 3 is equal to 3 into 2 by root 3 square minus 1। तो बच्चों 3 into 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 और root 3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 3। तो क्या ये 0 है? नहीं, बिकॉज ये 0 नहीं है देयरफॉर x is equal to 2 by root 3 is not 0 of px। इनकेस बच्चों ये व्यू नहीं हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to x plus 5। दिस इज द अपोजिट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन विच वी हैव कंप्लीटेड नाउ। जो हमने वहाँ पे किया था उसमें ये था कि एक x की वैल्यू गिवन थी और आपको चेक करना था कि वो उसका 0 है या नहीं है। तो आपने उसको x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट किया, पुट करके आपने देखा कि अगर वो 0 आ रहा है तो वो उसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ आपको वो x की वैल्यू निकालनी है जो पुट करने से ये 0 बनेगा। तो देखो किस तरह से करते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूँ तो आपको px गिवन है x प्लस 5, px का गिवन है आपको x प्लस 5। आपको 0 निकालना है, क्या निकालना है 0। तो आप लिखोगे टू फाइंड 0 ऑफ px, पुट px इक्वल टू 0। इसको हम px को किसके इक्वल ले लेंगे 0 के, वो जो जैसे हम इसको 0 के इक्वल लेंगे तो मेरा p0 किसके इक्वल आ जाएगा 0 + 5 एंड इट इज इक्वल टू 5। px इक्वल टू अगर 0 लूंगा, सॉरी px को हमने क्या लिया है 0, यानी कि ये जो पूरी पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल हो गया, ये px है और ये इसकी वैल्यू। अगर ये px 0 हो गया तो कैन आई से दैट कि जो मेरा x प्लस 5 है वो 0 के इक्वल होगा। प्लस 5 इधर आके क्या होगा बच्चों -5, therefore we can say that x is equal to -5
is a zero of px. ये किसका जीरो होगा बच्चों? px का. आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ फ्रेंड्स पार्ट 2. px की वैल्यू कितनी है? x माइनस 5. अब मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है. x माइनस 5. अगेन पुट to find 0, put px is equal to 0. What is the value of px? X minus 5. Put this equal to 0. And what we are going to have? We are going to have x is equal to 5. Right? This is the part 2. Let's do part number 3. Part 3, 2x plus 5. Same procedure. Px is equal to 2x plus 5 to find 0 of px. Put px is equal to 0, which implies 2x plus 5 is equal to 0, which implies 2x is equal to minus 5, implies x is equal to minus 5 by 2. तो ये आ गया आपका 0 of px. पार्ट 4. px कितना बच्चों? 3x minus 2. Put again px is equal to 0, which implies 3x minus 2 is equal to 0, and which implies, ये आपका रिमेनिंग पार्ट 4 का कंटिन्यूएशन है. पार्ट 4 में फिर से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ. 3x माइनस 2 को अगर 0 रखोगे तो बच्चों 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3. राइट. नाउ पार्ट 5. पार्ट 5 है बच्चों आपका px इज इक्वल टू 3x. व्हाट इज पार्ट 5? px इज इक्वल टू 3x. तो px इज इक्वल टू 3x. पुट px is equal to 0, which implies 3x is equal to 0, and which implies x is equal to 0/3 is equal to 0. Part 6. px is equal to ax and a is not equal to 0, क्योंकि बच्चों a यहाँ पे कांस्टेंट और कंडीशन दी गई कि a 0 नहीं हो सकता, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगेन put px is equal to 0. It implies ax is equal to 0, और a को 0 से मैं डिवाइड करूंगा तो वो 0 ही आएगा. तो यहाँ पे जो 0 होगा px का वो क्या होगा? x is equal to 0. लास्ट पार्ट, 7th पार्ट. बच्चों px क्या है आपका? cx plus d. राइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px? cx plus d. तो पुट px is equal to 0 implies cx plus d equal to 0 implies cx is equal to minus d, और c मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा बच्चों? डिवाइड. तो ये आपका 0 क्या आ गया? px का. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल. तो क्या करना है आपको? जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसका जीरो फाइंड करने के लिए आप उसी को 0 के इक्वल रखोगे. जब आप उस px की वैल्यू पुट करोगे, जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का बाकी पार्ट यहाँ पे किया है, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड देन सेवन. Now pause the video, note it down. Here our exercise 2.2 is completed, has been completed. Now in the next class we will continue with exercise 2.3. So pause the video, note it down and revise the whole concept. If you have any doubt, you can text me on WhatsApp about your doubts and I will clarify your doubts in the next lecture. Thank you.